Hello everyone, I hope you are doing well. Today I am going to discuss about hypertension. So each time our heart beats and blood is pumped through our arteries and veins, the blood vessels of our circulatory system, arterial blood pressure is created by the force. जो आर्टरीज के द्वारा उन वॉल्स पे प्रेशर लगाया जाता है उसे ही ब्लड का प्रेशर कहते हैं। अगर वो ज़्यादा होता है तो उसे हाइपरटेंशन कहते हैं और अगर वो कम होता है तो उसे हाइपोटेंशन कहते हैं। सो हाइपरटेंशन इज ऑल्सो नोन एज हाई ब्लड प्रेशर. It is when the pressure of the blood being pumped through any artery is higher than it should be. High blood pressure or hypertension has been called the silent killer. Silent killer क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके कोई warning signs नहीं है. Many people do not know they have it. Over time, the constant pressure overload causes accumulating damage that eventually becomes more than our circulatory system can handle, often leading to serious health problems. Types of hypertension is primary hypertension, secondary hypertension, malignant hypertension, resistance hypertension, pulmonary hypertension, and pseudohypertension. The risk factors of hypertension is genetics, race and age. जो जेनेटिकली यानी कि आपके पेरेंट्स में है, आपके फैमिली मेम्बर्स के अंदर है, जो आपके जीन्स में है, अगर उनको हाइपरटेंशन होगी तो चांसेस है कि आपके अंदर भी आए. बाय रेस कि कुछ कॉमन कम्युनिटीज़ होती हैं, कुछ रेसेस ऐसी होती हैं जिनमें स्पेशली वो बीमारी पाई जाती है. That high BP more common in people with dark skin than in people with pale skin. डार्कर का जो ब्लड होता है वो हाई ब्लड प्रेशर में माना जाता है. उसके अकॉर्डिंग अगर एज ज़्यादा होती है तो उसमें भी हो सकता है हाइपरटेंशन. ओवरवेट है या ज़्यादा सोल्टी ईटिंग करता है, अल्कोहलिक है या स्मोकिंग करता है, दैट मे बी द रिस्क फैक्टर्स. The causes of hypertension is kidney disease, diabetes, long-term kidney infection, obstructive sleep apnea और नींद नहीं आती है किसी को, ग्लैमरुलर नेफ्राइटिस है यानी कि किडनी अच्छे से फिल्टर नहीं कर पा रही है, हार्मोनल प्रॉब्लम्स हो सकती है, थायराइड हो सकता है, और lupus, scleroderma, excess salt, abnormal arteries, increased blood volume, genetic disorder, stressful life, health condition, certain medicines, recreational drugs, pregnancy and hormonal therapy. Symptoms of hypertension is heart failure, heart attack, kidney failure, stroke, amputation, hypertensive retinopathies और blindness. Diagnosis and test. The normal BP is 120/80 mmHg. Pre-hypertensive is 120 to 139 or 80 to 89 mmHg. Stage 1 hypertension is for 140 to 160, 90 to 100 mmHg. Stage 2 hypertension is 160/100 above mmHg. ब्लड प्रेशर के ट्रीटमेंट गोल्स क्या क्या हो सकते हैं हमारे? लेस देन 150/90 mmHg है तो हेल्दी अडल्ट एज 60 और ओल्डर है तो वो चल जाता है. अगर लेस देन 140/90 में है, अगर लेस देन यंगर देन एज 60 है तो उसका सही रहता है. अगर लेस देन 140/90 है mmHg तो अ पर्सन हैव क्रोनिक किडनी डिजीज, डायबिटीज और कोरोनरी आर्टरी डिजीज और एट हाई रिस्क और कोरोनरी आर्टरी डिजीज.
ये ब्लड प्रेशर उनके लिए नॉर्मल है, बाकी हमारे लिए तो 120/80 होता है। Medication to treat hypertension is thiazide, beta blockers, angiotensin with receptor blockers, calcium channel blockers, renin inhibitors, alpha blockers, alpha beta blockers, central acting agents, vasodilators, aldosterone antagonists. Lobet or Talma AM, Talma 40 mg is also used to treat hypertension. You can change your lifestyle to treat hypertension, जैसे कि आप हेल्दी खाना खा सकते हो जिसमें सॉल्ट की मात्रा कम हो, और एक्सरसाइज कर सकते हो, स्मोकिंग को क्विट कर सकते हो, अल्कोहल स्टॉप कर सकते हो, मेंटेनिंग अ हेल्दी डाइट, और वेट, अगर ज़्यादा वेट है तो आप वेट को लूज़ कर सकते हो। अब आपको अगर प्रिवेंट करना है खुद को कि आपको हाइपरटेंशन ना हो, दैट आपको एक हेल्दी वेट गेन करना है, या मतलब हेल्दी वेट रखना है अकॉर्डिंग टू BMI। गेटिंग रेगुलर एक्सरसाइज रेगुलर करनी है बिना किसी चीट डे के। रिड्यूसिंग सॉल्ट इनटेक, सॉल्ट को कम से कम करें और अल्कोहल को स्टॉप करें। स्ट्रेस लेवल को लो करने के लिए आप योगा ट्राई कर सकते हो, कहीं घूमने जा सकते हो, अपने आप को रिलैक्स रखने की कोशिश कर सकते हो। अपनी डाइट में न्यूट्रिएंट्स जो स्पेशल होते हैं, सप्लीमेंट्स हो सकते हैं, वो यूज़ कर सकते हो, जैसे कि पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो आप फिश ऑयल ऐड कर सकते हो अपने डाइट में। और एक गार्लिक है, जो इसके कुछ चांसेस हैं कि ये बीपी को लो करता है, कोलेस्ट्रॉल को रिड्यूस करता है, तो इसको आप ऐड ऑन कर सकते हो अपनी डाइट में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। अगली वीडियो में फिर से मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए बाय बाय।